Welcome to my YouTube channel, Tamso Ma Jyotirgamaya. In the previous lecture, we had discussed the basic terminology required in genetics. In this lecture, we will talk about Johann Mendel, who is also known as the father of genetics. Mendel was born in 1822 to a peasant family in a village in Austria. Later, he attended the University of Vienna, where he studied physics and botany. He also taught these two subjects for several years. In 1856, he launched the research phase of his career when he started working on the garden pea. Scientific name of garden pea is Pisum sativum, and Pisum sativum is a diploid plant. So you can see 2n is equal to 14, n is equal to 7. That means कि पी प्लांट के एक सेट में 7 क्रोमोसोम्स हैं एंड दो सेट्स में 14 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं एंड इट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सो एवरी सेल कंसिस्ट्स ऑफ 2 sets of chromosomes. Now the question is, why did he choose pea plant? So there is a concept known as model organism. जब भी जेनेटिक्स में कुछ स्टडी करना होता है तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट होता है टू हैव अ मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसपे सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाएं. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज सो कॉल्ड मॉडल ऑर्गेनिजम्स? Model organism is selected on the basis that it should have a short lifespan. It should produce a large number of offsprings. The offsprings should show large number of variations. The organism should be easy to manage, and hybridization should also be very easy. Here are some examples of model organisms जैसे कि Drosophila or fruit fly, then bacteria E. coli, Arabidopsis thaliana, it is a small plant, and Neurospora is a fungus. And Pisum sativum is also a model organism. तो पी प्लांट जो है वो एक एनुअल प्लांट होता है. इसका मतलब वो एक ही ईयर में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है. Then it produces a large number of seeds, which is a good thing. And बहुत सारे distinctive traits show करते हैं pea plants, and they naturally self pollinate and artificially उनको easily cross pollinate भी किया जा सकता है. The hybrids produced are fertile. Mendel worked on Pisum for 7 years between 1856 to 1863. उसने अपना काम प्रेजेंट किया 1865 में एट द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन ऑस्ट्रिया and his work was titled Experiments in Plant Hybridization. His work was finally published in 1866. It was a very methodical work, well designed, organized. Mendel selected only one character at a time, and he always started his experiment with pure line. आगे हम समझेंगे कि pure line क्या होता है. He also took a large sampling size. Sampling size जितना बड़ा हो उतनी अच्छी बात होती है. Data जो है वो उतना ही reliable माना जाता है. And Mendel was also the first scientist to give the statistical or mathematical interpretation of the biological data. But ये सारी praises हम आज सुनते हैं. At that time, his work was not well received. So Mendel was much ahead of his time, and the other scientists did not agree with his work. He got dejected and he died unrecognized in 1884. So in 1990, 16 years after Mendel's death, Mendelism was rediscovered by three botanists. These three botanists were Hugo de Vries, Karl Correns, and Eric Schermark. इन तीनों ने अर्ली 20th सेंचुरी में कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए इंडिपेंडेंटली, and these experiments were similar to the experiments performed by Mendel.
Now when they searched the existing literature, then they found Mendel's work जिसमें already सारे conclusions present थे. So that is how Mendel's work was rediscovered independently by these three botanists. Mendel finally got recognized and the branch of genetics was established. And today genetics is the most celebrated branch of science. मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. So you can see here every character has two traits, one dominant trait and one recessive trait. तो इसका मतलब है 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ मेंडल ने वर्क किया था एंड जो भी जीन इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसके 2 अलील्स प्रेजेंट है तभी 2 ट्रेट्स बन रहे हैं. ठीक है, तो एवरी जीन हैड अ डोमिनेंट अलील एंड अ रिसेसिव अलील, इसीलिए हर कैरेक्टर का एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है. अब वन बाय वन देखते जाइए कौन से कैरेक्टर्स थे जिनके साथ मेंडल ने वर्क किया. सो फर्स्ट इज प्लांट हाइट एंड ट्रेट्स हैं टॉल और ड्वार्फ. देन सीड कलर 2 तरह के मिलते हैं पी प्लांट में, येलो एंड ग्रीन. सीड शेप राउंड और रिंकल्ड. फ्लावर कलर वायलेट और वाइट. फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल. पॉड कलर ग्रीन या येलो. पॉड शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड. नाउ एज आई टोल्ड यू, पी प्लांट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. उसके अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, 14 क्रोमोसोम्स इन एवरी सेल. एंड इसका मतलब है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम में 14 क्रोमोसोम्स हैं तो एक सेट में कितने होंगे 7 क्रोमोसोम्स. अब जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, अगर हम उनकी क्रोमोसोमल पोजीशन देखें तो वो कुछ इस तरह है. तो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर फ्लावर कलर और सीड कलर के जीन्स प्रेजेंट है. देन क्रोमोसोम नंबर 4 पर फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप और प्लांट हाइट के जीन्स प्रेजेंट है. क्रोमोसोम नंबर 5 पर पॉड कलर के जीन्स प्रेजेंट है एंड क्रोमोसोम नंबर 7 पर सीड शेप के जीन्स प्रेजेंट है. तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ 4 क्रोमोसोम्स पर मेंडल के 7 सिलेक्टेड कैरेक्टर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. Now, before moving ahead, we need to understand the process of gamete formation. It is the backbone of genetics. अब किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गेमीट्स कैसे बनते हैं? गेमीट्स बनते हैं एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन प्रोसेस से जिसे हम बोलते हैं मियोसिस. एंड ह्यूमन फीमेल में गेमीट कौन सा होता है? एग. ह्यूमन मेल में गेमीट कौन सा होता है? स्पर्म. So they are formed by the meiotic division. So you have to remember 2 things about gamete formation. Number 1, gametes are always pure, and number 2, gametes are haploid. Now, when a diploid parent cell undergoes the process of meiosis, haploid daughter cells are formed. This you will know if you have already read and understood the process of meiosis. बट जब भी मियोसिस में कोई डिप्लॉयड पेरेंट सेल एंटर करता है तो हमेशा हैप्लॉयड डॉटर सेल्स ही बनते हैं. इसीलिए गेमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, उनकी प्लॉइडी क्या होती है? इट इज ऑलवेज हैप्लॉयड. दे कैरी ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अब क्योंकि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो हर जीन की एक ही कॉपी होगी. तो चाहे एक जीन के 1000 अलील्स हो, 100 अलील्स हो या जितने भी हो, एक गेमीट के अंदर एक जीन का सिर्फ एक अलील ही प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि सिर्फ एक ही लोकस है हर जीन के लिए. इसीलिए हम गेमीट्स को प्योर बोलते हैं क्योंकि गेमीट्स कभी भी हेट्रोजाइगस नहीं हो सकते. उनमें एक से ज्यादा अलील्स नहीं प्रेजेंट हो सकते. दे हैव ओनली 1 लोकस फॉर ईच जीन. Hence they are always pure. Now we will take an example to gain some clarity. Let us assume कि एक जीन है और उस जीन के 2 अलील्स हैं. कैपिटल A is the dominant allele and small a is the recessive allele. अब किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये जीन कैसे प्रेजेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर. सो
कैपिटल ए हमने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप में शो कर रही हूँ, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म में दोनों अलील्स कौन से हैं? कैपिटल ए, यानी कि बोथ द अलील्स आर द डोमिनेंट वंस। तो ये इस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है फॉर दिस पर्टिकुलर जीन। तो दिस ऑर्गेनिज्म इज अ होमोजाइगस डोमिनेंट, आई कैन से। अब जब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मियोसिस करेगा और गेमीट्स बनेंगे, तो गेमीट में इस जीन का कौन सा अलील आएगा? एक ही अलील प्रेजेंट है तो सारे गेमीट्स में वही अलील प्रेजेंट होगा, कैपिटल ए या डोमिनेंट अलील ए, राइट। सो ऑल द गेमीट्स आर आइडेंटिकल फॉर दिस जीन। इस जीन के लिए सारे गेमीट्स सेम है, सब में कैपिटल ए या डोमिनेंट ए अलील ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमेशा एक ही तरह के गेमीट्स बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। अब इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल ए स्मॉल ए। सो दिस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि इसके पास जो दोनों अलील्स हैं वो कैसे हैं? वो रिसेसिव अलील्स हैं। So when the diploid cell of such an organism undergoes meiosis, तो जो भी haploid gametes बनेंगे उनके पास कौन सा allele pass on होगा? It will obviously be small a or the recessive a allele, क्योंकि इस individual के पास एक ही allele है तो वही gametes में जाएगा, and इसीलिए इस individual के सारे gametes में recessive a allele present होगा। So homozygous individuals produce only one type of gametes. Now this diploid organism has the genotype capital A small a, यानी कि ये एक heterozygous individual है। जब इसके डिप्लॉयड सेल्स मियोसिस अंडरगो करेंगे तो दो तरह की गेमीट्स बनेंगी। आधी गेमीट्स के पास कैपिटल ए या डोमिनेंट अलील होगा एंड आधे गेमीट्स के पास स्मॉल ए या रिसेसिव अलील होगा। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड कितने टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे वो डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ द हेट्रोजाइगोसिटी एंड होमोजाइगोसिटी, ठीक है। तो इम्प्योर गेमीट्स, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज एन इम्प्योर इंडिविजुअल, तो इसके गेमीट्स भी इम्प्योर होते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम इनके नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज 2 की पावर n, 2 raised to the power n, and n is the number of the heterozygous pairs of genes। यहाँ पर तो मैंने एक ही जीन यूज किया है, बट यू नो दैट एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो जीनोटाइप में हम बहुत सारे जीन्स भी शो कर सकते हैं इकट्ठे। तो जितने भी जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं वो हमारा n बन जाता है, एंड 2 की पावर n gives us the number of impure gametes formed या the different types of gametes जो बनेंगे। So let us understand this with another example. Now here we have the genotype of a diploid organism. Capital U, small v, capital W, small x, capital Y, capital Z, small z. So I have taken more than one gene, इसीलिए जो genotype है वो इतना बड़ा दिख रहा है। So now pause the video and try this question. So you have to figure out the number of genes as well as the number of different gametes this individual is going to form during meiosis. तो नंबर ऑफ जीन्स को फिगर आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है। जितने टाइप के अलग अलग तरह के अल्फाबेट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं उतने नंबर ऑफ जीन्स है। सो वी हैव U, V, W, X, Y, Z. That means I have represented 6 genes in this genotype of the diploid organism. टाइप्स ऑफ गेमीट्स फिगर आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कितने तरह के जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो यू कैन सी जो U है वो कैपिटल U 2 बार सेम, राइट, आइडेंटिकल अलील्स है, दोनों डोमिनेंट है, तो दिस इज होमोजाइगस, तो इसे मैं काउंट नहीं करूंगी। देन स्मॉल v, also homozygous recessive है ये।
Then capital W, small w. Yes, this is heterozygous pair. Small x, this is homozygous recessive. So इसे मैं count नहीं करूंगी. Then capital Y, small y. Again, this is a heterozygous pair. Capital Z, small z is also a heterozygous pair. तो हमारे पास 3 heterozygous genes हैं यहाँ पर इस जीनोटाइप में. So 2 की power 3 is equal to 8. मतलब this individual is going to form 8 different types of gametes. हर gamete की जो probability है वो होगी 1/8. ठीक है, 8 तरह के gametes बनेंगे and 1/8 will be the probability of the formation of each of the gametes. Now we can also figure out कि ये gametes कौन से होंगे, इन gametes के अंदर कौन से alleles present होंगे. So let us do that now. सबसे पहले मैंने u, v और x को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में ही नोट डाउन कर दिया 8 बार, क्योंकि इनका तो एक ही अलील प्रेजेंट है. All the gametes will have the capital U, all the gametes will have the small v and all the gametes will have the small x, क्योंकि ये 3 जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है. अब जो बाकी के 3 जीन्स है W, Y, Z, उनके कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशंस में प्रेजेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने W, Y, Z को एक बार तो तीनों कैपिटल में लिख दिए और एक बार तीनों स्मॉल में लिख दिए. ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस आ गए. गेमीट्स, 2 तरह के गेमीट्स मुझे पता चल गए कि उनके अंदर कौन से अलील्स प्रेजेंट होंगे. अब एक को कैपिटल रखेंगे और बाकी दोनों को स्मॉल, यानी कि एक को हम डोमिनेंट अलील की फॉर्म में रखेंगे और बाकी दोनों जीन्स को हम रिसेसिव अलील की फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो W कैपिटल है तो YZ स्मॉल है, Y कैपिटल है तो WZ स्मॉल है एंड Z कैपिटल है तो WY स्मॉल है. अब बाकी के कॉम्बिनेशंस में 2 को कैपिटल रखूंगी और एक को स्मॉल रखूंगी. सो WY कैपिटल है तो Z स्मॉल है, YZ कैपिटल है तो W स्मॉल है एंड WZ कैपिटल है तो Y स्मॉल है. तो इस तरीके से मैंने इन 3 जीन्स को यूज करते हुए, इनकी हेट्रोजाइगस कंडीशन को यूज करते हुए 8 कॉम्बिनेशंस बना लिए और जो बाकी के 3 जीन्स थे वो होमोजाइगस थे, तो उनको हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया. So this is how we get the 8 different types of gametes जो ये individual meiosis पर form करेगा. Simple and easy.